Assalamu alaikum, dear aspiring candidates. Today we are going to discuss another important topic related to biodiversity, that is causes or threats for biodiversity loss. Dear aspiring candidates, as we know that biodiversity provides us number of both direct as well as indirect services like ecological services, economical services, biological services. And in other words, we can say our existence depends upon the presence of this biodiversity. But our greediness, our interference has resulted the extinction of so many species of biodiversity. There are a number of causes, both natural cause as well as man-made cause. But man-made causes are mostly responsible for the loss of biodiversity. And the four important causes which has caused lot of destruction to this biodiversity includes habitat habitat destruction habitat destruction and fragmentation. Fragmentation. First cause is habitat destruction and fragmentation. And the second important cause responsible for the loss of biodiversity is invasive alien species. एलियन स्पीशीज सिंपली आप ये याद रखो, ये टर्म ये एब्रिविएशन आपको याद रहेगी, दैट इज IAS. IAS मीन्स इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ये आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि सो मेनी एस्पिरेंट्स इस वक्त इस एग्जामिनेशन दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इस वक्त लगे हुए होंगे, तो इसीलिए आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, इट मींस इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, और इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज एक्सोटिक स्पीशीज। ठीक है, this is the second important cause responsible for the loss of biodiversity. The third important cause responsible for the loss of biodiversity is overexploitation. Exploitation. Third important cause for the loss of biodiversity. And the fourth important cause is co-extinction. Co-extinction. These four causes are the most important factors that has caused loss of so many species. And for that reason, these four causes are also called four evil quadrants. इनको हम four evil quadrants भी कहते हैं, evil quadrants। इनको हम evil quadrants भी कहते हैं। क्यों कहते हैं evil quadrants? Because these four causes has caused destruction of our biodiversity. There are other causes also responsible for the loss of biodiversity like pollution, intensive agriculture, lack of education. उनसे भी biodiversity की जो loss हुई है, but these are the prominent causes for the loss of biodiversity. तो आज हम इन्हीं चार causes को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन causes के जरिए हमारी biodiversity लॉस होती है। ठीक है, तो पहला जो कॉज है, द फर्स्ट कॉज इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रैगमेंटेशन। देखो ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है, फर्स्ट कॉज जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रैगमेंटेशन। Remember beta, this is the important cause.
This is the most important and the first important cause for the loss of biodiversity. सबसे बड़ा जो cause है वो यही है, habitat destruction and fragmentation. First important cause. First and most important cause. ये सबसे बड़ा cause जो है biodiversity का, तो वो यही है, first and most important cause for the loss of our biodiversity. अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, which of the following cause is responsible for the loss of biodiversity, अब अगर वहां पर ये चारों ऑप्शंस आएंगे तो आप किसको पिक करेंगे? आपको उस टाइम ये पिक करना है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे बड़ा जो कॉज है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो यही है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज मैंने यहां पर लिखा, और सबसे बड़ा कॉज यही है। ठीक है, तो देखो ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है, या अगर हम फ्रेगमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं? देखो क्यों हम इस कॉज को प्रमोट करते हैं, क्यों हम हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ के? ड्यू टू 3 रीजंस, दैट इज ओवर पॉपुलेशन, second is industrialization and third urbanization. Overpopulation, industrialization और urbanization, इन तीनों के लिए हमें एक्स्ट्रा लैंड चाहिए। ओवर पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे आज इंडिया में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हुई है। अब ये जो ओवर पॉपुलेशन हुई है, तो हमें पॉपुलेशन को अब लैंड भी चाहिए, उनको बसाना है। ठीक है, उस पॉपुलेशन को एडजस्ट करने के लिए आज क्या हम करते हैं, हम नई सिटीज बनाते हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन। और इसी के साथ साथ जो तीसरा कॉज है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आजकल हम इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोट करते हैं। फॉर बोथ थ्री वी नीड लैंड। हम उस लैंड को कैसे क्लेम करते हैं, कैसे हासिल करते हैं? हम दो तरीकों से उस लैंड को हासिल करते हैं यहाँ पर। या तो हम वेटलैंड्स जिसमें वाटर बॉडीज आते हैं, इंक्लूडिंग लेक्स प्लस स्वैम्प्स, या तो हम इन वाटर बॉडीज को फिल करते हैं, हम इनको फिलिंग करते हैं, ठीक है ना, इन वाटर बॉडीज को टू क्लेम द लैंड। अब जब हम इनको फिल करते हैं टू क्लेम द लैंड, यहां पर क्या होता है? यहां पर यह होता है कि इन वाटर बॉडीज में वहां पर एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं, वहां पर फिश स्पीशीज होते हैं, वहां पर प्लांट्स भी होते हैं इन एक्वेटिक बॉडीज में। जब हम इनको फिल करते हैं तो वो जो वहां पर स्पीशीज रहते हैं, दे गेट किल्ड, वो वहीं पे मर जाते हैं। और वहां पर और भी कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो गेट लॉस्ट बाय फिलिंग। तो इससे बहुत सारे स्पीशीज किल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कश्मीर में, तो कश्मीर में हम क्या करते हैं आजकल, यहाँ पर हम अपने वेटलैंड्स को उनको फिल करते हैं, फिर वहां पर हम नए मतलब वहां पर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डल लेक का हाल देखो आज, वहां पर डल लेक को फिल किया जा रहा है, फिल करके अब मुझे लग रहा है कि विद इन 10 to 15 ईयर्स तो वहाँ ये जो डल है इसकी कहानी खाली अब बुक्स में रहेगी। तो डल हमें देखने को फिर नहीं मिलेगा अगर प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे इस टाइम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक लेक हुआ करता था जिसका नाम है आंचार लेक, तो आजकल आंचार लेक नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास ये वेटलैंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ा वेटलैंड था नारपुरा में, तो वहाँ पर आप देखो आज उसको फिल किया गया है। तो आजकल वहाँ पर वो बिल्डिंग्स बनाते हैं और वहाँ पर आजकल वो सब्जियां उगाते हैं। तो अदरवाइज वो वहाँ पर वेटलैंड था, तो आजकल वेटलैंड मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप देखो शालबुग, वहाँ पर उसका भी हाल वही है। मिरगुड आप देखो, मिरगुड में वहाँ पर उसको फिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए या
अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हम वेटलैंड्स को यहाँ पर फिल करते हैं। उससे ये होता है कि जो इन वेटलैंड्स में स्पीशीज रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो वहां पर रहती है, वो खत्म हो जाती है। दिस इज द वन रीजन फॉर द किलिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अनदर इज, अगर हम इस तरीके से क्लेम नहीं करते हैं तो दूसरे तरीके से हम लैंड क्लेम करते हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी हम करते हैं, हम जंगल्स को काटते हैं टू क्लेम द लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। और वहां पर आजकल हम सिटी मतलब वहां पर वो लैंड क्लेम करते हैं फॉर ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। उससे क्या होता है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं हम वहां पर खाली प्लांट्स को एनहेलेट नहीं करते हैं, बल्कि जो वहां पर एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट्स में, एनिमल्स भी जो वहां पर रहते हैं, वो एनिमल्स भी क्या है, वो कहां चले जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स एलियन लैंड। वो एनिमल्स एलियन हैबिटेट में जाते हैं, एलियन हैबिटेट। जब वो एलियन हैबिटेट में जाते हैं ये एनिमल्स इस फॉरेस्ट से, बिकॉज फॉरेस्ट्स आर रिगार्डेड एज हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स इसी मतलब फॉरेस्ट्स में रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एनिमल्स मूव करते हैं एलियन लैंड की तरफ। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, दे फेल टू कंप्लीट विद द नेटिव स्पीशीज, और व्हेन दे फेल टू compete with the native species, they get killed। तो वो वहां पर मर जाते हैं, they get killed, वो वहां पर उनको मर जाते हैं बेचारे। तो ये है इस तरह से कि जब हम हैबिटेट को एनिमल्स के वहां मतलब उनको फ्रैगमेंट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हैबिटेट्स के साथ साथ ही जो वहां पर एनिमल स्पीशीज होते हैं, प्लांट स्पीशीज होते हैं, दे गेट किल्ड। ठीक है, देखो और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन में। डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं तो वहां पर जो होते हैं फॉरेस्ट्स, वहां पर मुख्तलिफ स्पीशीज रहते हैं। As we know, the species are interdependent upon each other। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पर डिपेंडेंट होती है। But when we destroy the habitat, what happens? The relationship between different species gets disturbed। वो relationship जो होती है इन स्पीशीज के दरमियान वो भी खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती है तो जितनी भी स्पीशीज वहां पर होती है तो वो उनकी वो किल हो जाती है। इसी तरह से जब हम वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उससे क्या होता है कि वेटलैंड्स एज वी नो आर रिगार्डेड एज ब्रीडिंग ग्राउंड्स। अगर हम देखेंगे वेटलैंड्स जो है, वेटलैंड्स आर रिगार्डेड एज ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर माइग्रेटरी एनिमल्स। माइग्रेटरी एनिमल्स जो है जिसमें बर्ड्स आते हैं, जिसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, तो ये इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। जब हम इनको फिल करते हैं इससे क्या होता है कि these migratory birds they go astray, ये एस्ट्रे हो जाते हैं। उससे क्या होता है, they get killed, they ultimately get killed। तो इससे ये होता है कि जब हम हैबिटेट्स को फ्रैगमेंट करते हैं, जब हम इनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इससे ये होता है कि स्पीशीज दूसरे हैबिटेट में या तो चले जाते हैं तो दे गेट वहां किल्ड देयर, और या हम उनको डायरेक्टली ही किल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज रिस्पांसिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। देखो बेटा, अगर हम इसमें देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की मैं यहाँ पर बात करूंगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स tropical rainforests originally they were occupying about 40% of earth के 14% पर ट्रॉपिकल rainforests थे। बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, आज अगर हम इनकी परसेंटेज देखेंगे, इट इज नाउ रिड्यूस्ड जस्ट टू 6%। आजकल हमें खाली 6% पर ये ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में फॉरेस्ट है, उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट जो ब्राजील में है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है
रेन फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को आज किल किया जाए, मतलब वहां पर फॉरेस्ट को आज वहां पर काटे जाते हैं। फॉरेस्ट को क्यों काटे जाते हैं? टू क्लेम लैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, वहां पर सोयाबीन को कल्टीवेट किया जाता है, एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो इसकी जो परसेंटेज है अब ये भी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज which is responsible for the loss of biodiversity. The second important cause responsible for the biodiversity is invasive alien species. Invasive alien species, alien species जिसको हम simply IAS भी कहते हैं। तो इस alien species को हम exotic species भी कहते हैं। एक्सोटिक स्पीशीज, पहले हम जानेंगे बेटा कि एलियन स्पीशीज किस स्पीशीज को कहते हैं। देखो, एलियन स्पीशीज और एक्सोटिक स्पीशीज उस स्पीशीज को कहते हैं विच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वन रीजन फ्रॉम अनदर रीजन, जो एक एरिया में या एक रीजन में जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है दूसरी रीजन से और दूसरी एरिया से जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, या एक कंट्री में दूसरी कंट्री से जो स्पीशीज आती है उसको हम कहते हैं एलियन इनवेसिव स्पीशीज, ठीक है। द स्पीशीज which is introduced into one area, मैं एरिया ही लिखूंगा, from another area either intentionally or inadvertently, या तो इसको इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये स्पीशीज इनएडवर्टेंटली आती है किसी एरिया में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एलियन स्पीशीज। ईदर इंटेंशनली, या तो इसको इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया जाता है इंटेंशनली और इनएडवर्टेंटली, ठीक है। तो या तो इसको इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी कंट्री में, किसी एरिया में, और ये इनएडवर्टेंटली किसी शिप के साथ किसी एरिया में आती है दूसरी एरिया से, तो उस स्पीशीज को हम कहते हैं एलियन स्पीशीज। देखो, अगर हम देखेंगे इंडिया में एज पर zoological survey of India, as per zoological survey of India, there are about 157 alien species। तकरीबन इंडिया में जो है तकरीबन as per zoological survey of India, there are about 157 species जो एलियन स्पीशीज है, जो यहाँ की अपनी स्पीशीज नहीं है बल्कि दूसरी कंट्री से यहाँ पर आए हैं, तो उन स्पीशीज को हम कहते हैं एलियन स्पीशीज। देखो, हम देखेंगे कि ये जो एलियन स्पीशीज हैं, हाउ दे डिस्ट्रॉय द लोकल स्पीशीज, ये किस तरह से लोकल स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करती है। देखो क्या होता है, ये जो एलियन स्पीशीज हैं, इन एलियन स्पीशीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन एलियन स्पीशीज की कुछ खुसूसियात होती हैं। फर्स्ट अगर हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलियन स्पीशीज की, कैरेक्टर्स अगर हम उनके देखेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर जो एलियन स्पीशीज का है वो है हाई रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। हाई रिप्रोडक्शन, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इनमें होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ये जो स्पीशीज हैं एलियन स्पीशीज, जब ये किसी एरिया में आती हैं तो इनका रिप्रोडक्टिव पावर जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनका। जो दूसरा कैरेक्टर है एलियन स्पीशीज का वो ये है कि दे हैव हाई डिस्पर्सिंग पावर, कि ये बहुत ज्यादा तेज डिस्पर्स होती है, हाई डिस्पर्सिंग पावर। ये दूसरा कैरेक्टर है एलियन स्पीशीज का। दैट इज वाई कि ये बहुत तेज ये स्पीशीज डिस्पर्स होती है
दूसरे एरिया में। वो दूसरा इसका ये कैरेक्टर है। जो तीसरा ये है, तीसरा खसूसियात ये होती है एलियन स्पीशीज की कि दैट इट हैज द हाईएस्ट, इट हैज द अडॉप्टेबिलिटी, कि ये किसी भी फूड पर अडॉप्ट करती है, कि जब ये किसी एरिया में आते हैं तो इट गेट्स इजीली अडॉप्टेड, ये वहां पर अडॉप्ट होती है। तो हाँ, इजीली अडॉप्टेशन, इजीली अडॉप्टेबल जिसको हम कहते हैं, इजीली अडॉप्टेबल, कि ये लोकल एरिया में किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये स्पीशीज अडॉप्ट होती हैं। जो वहां का फूड होता है तो वहां पर अडॉप्ट होता है। कि दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलियन स्पीशीज, एंड ड्यू टू दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स these alien species they start competition with the local species। ये जो है ये कैरेक्टर्स की वजह से ये स्पीशीज कंपटीशन स्टार्ट करती है लोकल स्पीशीज से, एंड एज अ रिजल्ट जो लोकल स्पीशीज जो है उसमें इतने कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, उसमें इतने पावर्स नहीं होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो जो लोकल स्पीशीज हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड, उसको वो किल हो जाती हैं। तो ये जो एलियन स्पीशीज हैं ये इसको निकालती हैं अपने हैबिटेट से। तो एज अ रिजल्ट दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपको ये इस तरह से समझ आएगा इनवेसिव एलियन स्पीशीज का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वाटर हेसिन, वाटर हेसिन, वाटर हेसियत जो है इट्स ए प्लांट, ये प्लांट है, इट इज ए प्लांट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, इसको बंगाल के एक लेक में इंट्रोड्यूस किया गया था, बंगाल लेक में इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस वाटर हेसियत को। बिकॉज ये जो वाटर हेसियत है इट हैज द कैपेसिटी टू कंट्रोल द पोल्यूशन, टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ बंगाल लेक, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बट विद इन years what it did, this water has within years it has clogged, it has completely clogged this lake, इसने इसको completely clog किया है। उससे क्या हुआ कि इतनी ग्रोथ हुई है कि वहां एक साल के बाद ये नजर ही नहीं आ रहा था कि क्या ये वाटर बॉडी है कि या ये कोई लैंड है वहां पर, कि इतनी तेज या ये वहां पर फ्लोरिश हुआ उस वाटर में, उस लेक में। उससे क्या हुआ, ड्यू टू हाईएस्ट ग्रोथ इट हैज रिजल्टेड द किलिंग ऑफ फिशेस। इससे क्या हुआ कि वहां पर जो फिशेस थे, एक्वेटिक एनिमल्स जो थे, दे गेट किल्ड। नॉट ओनली दैट, बल्कि जो वहां ऑलरेडी प्लांट्स थे they also get killed, plants भी उससे kill हुए, and for that reason water hyacinth during that year was given a name that is Bengal terror। बंगाल टेरर भी इसको हम कहते हैं, इसको हम बंगाल टेरर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बंगाल में उस टाइम टेररिस्ट की तरह काम की है। इसने इस वाटर हेसियत ने तमाम जितने भी वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स थे या प्लांट्स थे उस बंगाल लेक में, उनको वहां पर किल किया है, वहां पर रिप्लेस किया है, खुद इतना वहां पर ये फ्लोरिश हुआ। दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इसी तरह से नील परिच एक प्रेडेटर फिश है। नील परिच ये एक प्रेडेटर फिश है, प्रेडेटर फिश। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विक्टोरिया लेक में। विक्टोरिया लेक जो है ये साउथ अफ्रीका का एक लेक है, साउथ अफ्रीका। तो इसको वहां पर नील से इस विक्टोरिया लेक में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, व्हाट इट डिड, दिस नील परच विद इन years it has resulted the killing of 200 species of fishes। इसने 200 स्पीशीज जो फिशेस के उनको किल किया है, उनको रिप्लेस किया है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है, इसी तरह से और एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाऊंगा जो आपको याद भी रहेगा। अगर ये दो याद नहीं रहे तो
तो ये आपको एटलीस्ट याद ये एग्जांपल रहेगी। अनदर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक कॉकरोच जो है यहाँ पर इस वक्त इसको हम कहते हैं जूलॉजी में पेरिप्लेनेटा अमेरिकना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकना, अमेरिकन। आप सिंपल आप इसको याद रखेंगे, इसका नाम है अमेरिकन कॉकरोच। अमेरिकन कॉकरोच, ये अमेरिकन कॉकरोच है। देखो ये जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकना है जिसका नाम है अमेरिकन कॉकरोच, ये यहां पर आया है थ्रू शिपमेंट्स, शिप्स के साथ। मतलब जो शिप्स वहां से आते हैं ये फूड आइटम्स लेके, तो ये फूड आइटम्स के साथ यहाँ पर पहुंचा है इनएडवर्टेंटली, ये इसको इंटेंशनली यहाँ पर नहीं लाया गया है, ठीक है ना। तो व्हाट इट डिड विद इन इयर्स, व्हाट इट डिड, इट स्टार्ट्स कंपटीशन विद लोकल इंडियन कॉकरोच जिसका नाम है पेरिप्लेनेटा ब्लाटा। पेरिप्लेनेटा ब्लाटा के साथ इसने कंपटीशन किया, और आज अगर आप देखेंगे कुछ ही जगहों पर आप इसको देखेंगे आज इंडिया में, तो जहां पर आप जाएंगे आप इसको देखेंगे पेरिप्लेनेटा अमेरिकना को। जो हमारे घरों में जो कॉकरोच है वो यही है अमेरिकन कॉकरोच, बिकॉज दिस पेरिप्लेनेटा अमेरिकना और अमेरिकन कॉकरोच हैज स्टार्टेड अ कंपटीशन विद दिस पेरिप्लेनेटा ब्लाटा। तो दिस पेरिप्लेनेटा ब्लाटा, it has failed to compete with this. This is the another example of invasive species, and through this invasive species or exotic species several local species gets killed, vanish ho jate hain. This is the another important cause. The third important cause responsible for the loss of biodiversity is overexploitation or exploitation. देखो our exploitation, for several products like horns, ठीक है, ivory, ठीक है, fur, leather, ठीक है, feathers, ठीक है, इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, we kill the wild species or biodiversity species, क्योंकि ये जो हार्नेस है आइवरी, फर, लेदर, फीदर्स, इनको हम बेचते हैं, बेचकर हमें पैसे मिलते हैं, एंड फॉर दीज रीजंस वी आर एक्सप्लॉइटिंग द स्पीशीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से ये समझ आएगा, एक डियर है यहाँ पर कश्मीर में जिसका नाम है मस्क डियर, मस्क डियर। तो ये जो मस्क डियर है इसको आपने देखा होगा, ये जो हमारे पास जो पहलगाम है वहां पर एक बायोस्फीयर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर, तो वहां पर अगर गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा जस्ट लाइक अ गोट जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये मस्क डियर होती है विदाउट हॉर्न्स, इट्स अ हॉर्नलेस डियर। ये जो मस्क डियर है इसका जो मेल पार्टनर, इस मेल पार्टनर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास एक पाउच होता है, और उस पाउच में क्या होता है, उसमें एक ऑड्रिफ्यूरस सब्सटेंस होता है, उस ऑड्रिफ्यूरस सब्सटेंस को हम कहते हैं मस्क, ठीक है। ये जो मस्क है इट इज यूज्ड एज ए परफ्यूम, इसको एज परफ्यूम इस्तेमाल किया जाता है, और इसको कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड फॉर दिस रीजन दिस मस्क डियर इज बीइंग किल्ड। इस पोच को फिर निकालते हैं एंड फिर इस मस्क को भेजा जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, एंड इट इज 1 kg fetches 1 million, अबाउट इसका जो 1 kg है ना, 1 kg में मस्क fetches about $1 million, $1 million वहां पर हमें मिलते हैं एक केजी में, ठीक है ना। तो इस मस्क डियर को इसीलिए यहाँ पर किल किया जाता है। तो एक्चुअली ये जो मस्क डियर है ये सेंट्रल एशिया में बहुत प्रोमिनेंट थी, एंड टुडे आज आप देखो ये रेस्ट्रिक्टेड है।
आज कश्मीर में आप देखो, कश्मीर में हमें ये मिलती है दाचीगाम में, और वहाँ जो है पहलगाम, तो वहाँ पर भी आपका ज़रूर है, ठीक है ना। तो अगर ये पोचिंग इसकी कंटिन्यू रही इसके लिए, तो विद इन ईयर्स हमारे पास इसकी खाली कहानी रहेगी, तो हमारे पास मसलियत नहीं रहेगी, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास जो टाइगर है, जिस टाइगर जो है, टाइगर आजकल हमारे पास ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्यों है? क्योंकि टाइगर को किल किया जाता है फॉर फर, इसको फर के लिए किल किया जाता है। इसी तरह से लीपर्ड्स हैं, स्नो लीपर्ड को भी इसी काम के लिए किल किया जाता है। वहां से जो उसका खाल है फिर उसका जैकेट बनाते हैं, पहनते हैं, ठीक है ना। बस इन लीपर्ड्स भी का हाल यही है। इसी तरह से जो है हमारे पास ये है रिनोसिरॉस, रिनोसिरॉस एंड एलिफेंट, ये दोनों जो स्पीशीज हैं ना, बोथ आर गोइंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, बोथ एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको किल किया जाता है फॉर आइवोरी और टस्क्स, ठीक है ना। टस्क्स और आइवोरी के लिए इनको वहां पर किल किया जाता है। बस यही इनकी प्रॉब्लम है, इनका यही गुनाह है कि इनसे टस्क और आइवरी हमें मिलता है, तो इसलिए इन स्पीशीज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से जो यहाँ कश्मीर का है, कश्मीर का हांगुल जिसको हम कहते हैं, हांगुल के बारे में तो आपने सुना होगा, कश्मीरी कहावत, हांगलो करियो शिव सिंहवाल के लिए आपको रहेगा याद। जो हांगुल है इट इज now restricted only to दाची गांव। आज अगर हम इस डियर को देखेंगे, इस डियर को देखेंगे, इट इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू दाची गांव। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसको क्यों किल किया जाता है? फॉर हार्वेस्ट, टू गेट हार्वेस्ट। वो उनको हम डेकोरेशन करने के लिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके हार्वेस्ट को, तो इसको भी एक्सप्लॉइट किया गया है। नाउ due to the exploitation, it has now restricted into Dachigam only. So this is how our exploitation result is the killing of biodiversity. ठीक है। तो और एक जो काज है, चौथा काज, उस काज को हम कहते हैं, चौथा काज जो है को एक्सटिंक्शन। फोर्थ काज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन से क्या मतलब है? देखो, जब एक स्पीशीज किल होती है, उस स्पीशीज के साथ दूसरी स्पीशीज भी किल होती है। क्योंकि लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया उस दौरान मैंने आपको बताया है कि यूजुअली जो स्पीशीज होते हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे डिपेंडेंट है, इसीलिए जब एक स्पीशीज भी किल होती है उसके साथ दूसरी स्पीशीज भी किल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक फिश किल होती है तो इस फिश पर पैरासाइट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जब ये फिश खत्म होती है, इसी फिश के साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि एक फिश के साथ दूसरी फिश, एक फिश के साथ और भी स्पीशीज खत्म होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कोएक्सटिंक्शन। इसका मतलब है जब एक स्पीशीज खत्म होती है, एक्सटिंक्ट होती है, उसके साथ दूसरी स्पीशीज भी खत्म होती हैं जो इस एक्सटिंक्ट स्पीशीज पर डिपेंडेंट होती है, एंड दिस इज हाउ द बायोडाइवर्सिटी गेट्स लॉस्ट। And there are other causes as well which influences the extinction or loss of biodiversity, includes और है पांचवा काज जिसको हम कहते पोल्यूशंस हैं, जिसमें वाटर और एयर पोल्यूशन प्रोमिनेंट है। इसी तरह से छठवां काज में इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी है इसमें, ठीक, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे ओवरग्रेजिंग भी है, ओवरग्रेजिंग ये भी एक काज है रिस्पांसिबल फॉर। इसी तरह से आठवां है लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है बायोडाइवर्सिटी का वैल्यू क्या है हमारे जिंदगी में, तो इसीलिए वो ड्यू टू लेक ऑफ एजुकेशन द पीपल इज मिसयूज देयर बायोडाइवर्सिटी।
and these are the important causes by which the biodiversity gets lost. तो इन causes की वजह से बहुत सारे species या तो वो extinct हो गए हैं, या तो हमने उनको endangered level पर पहुंचाया है, और कुछ species इन causes की बदौलत हमने उनको critical condition में पहुंचाया है. तो this is how biodiversity is lost. ठीक है. In next lecture we will discuss how we conserve the biodiversity, that is conservation of biodiversity. And to get that lecture, you are all suggested to join the link and subscribe same.